हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। सारे स्टूडेंट्स को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो वी शैल कंटिन्यू विथ आवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड इट इज़ इन द सिलेबस ऑफ बोथ क्लास 9 and 10. So both classes 9 and 10 can watch the video and gain maximum knowledge in direct and indirect speech. So as you all know that we have already done assertive sentences, right? We have done interrogative sentences, both the parts auxiliary and interrogative words, and today we will be learning imperative sentences. तो आज हम लोग imperative sentences पढ़ेंगे, ठीक है। अब after imperative sentence I am going to explain you exclamatory, and after that I will be explain you optative इन द लास्ट। ओके, मैं आपको एकदम लास्ट में जो है ऑप्टेटिव समझाऊंगा, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एग्जाम में आते नहीं हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर नेवर आस्क्ड इन द एग्जाम। आई हैव नॉट सीन so far I have not seen in the question papers also I have not seen optative sentences, but still we will learn because it is there in reported speech. We have rules also, so we will learn, but optative sentence we'll learn at the end. हम लोग end में ये सीखेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे imperative sentence। अब बहुत ईजी है imperative sentence को समझना। इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड imperative sentence. Imperative sentences, पहले थोड़ा definition देख लेते हैं। The previous ones I did not give you definition because those were quite okay, but imperative sentences में हम लोग थोड़ा सा definition देख लेते हैं, इसका meaning देख लेते हैं। Let us just watch, learn the definition. Okay, so imperative sentences are those sentences which express the following things. तो imperative sentences के अंदर आपको सिर्फ ये expressions याद रखने हैं। Under imperative sentence we have order. When you order somebody, that is imperative sentence. When you request somebody, that is imperative sentence. When you advise somebody, when you warn somebody, when you prohibit somebody. Prohibit means that you are not allowing somebody to do something. Not allowing somebody to do something, that is prohibition. You might have often seen that outside, outside, say for example, outside a park, if there are, say for example, there is a deer, okay, हिरन है एक पार्क में या जू में, जू, ठीक है। यू सी दैट जू के बाहर जो आपको है लिखा रहता है कि डोंट फीड एनीथिंग टू द एनिमल्स, दैट इज़ अ प्रोहिबिशन, ओके। और एंटरिंग दिस एरिया इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते, बाहर नोटिस लिखा होता है कि इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो प्रोहिबिट मीन्स टू नॉट अलाउिंग somebody to do something, that is prohibition. Order, request, advice, warning, आपको पता है warning किसी को warn करना। proposed है, किसी को proposed करना। propose मतलब वो proposal नहीं, ठीक है। proposed here means inviting somebody, okay, and regarding proposed there is a different set of example that I'll give you in the next class. फिर suggesting somebody something, begged off means like you are requesting and that request is like too deep, okay, too deep request. Say for example, a kidnapper has kidnapped somebody and that victim is telling, वो victim जो है जिसको kidnap करके लेके गया, वो victim कह रहा है प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो, प्लीज़ let me go home, that is begged off, that will not be requested, ठीक है। तो ये हम लोग जो है when we learn examples, I'll show you all these things, I'll show the uses of all these things, हम इनके पूरे uses जो है आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग sentences देख लेते हैं आराम से। तो पहले हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं। लेट अस स्टडी द रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न रूल्स, एंड इफ़ यू लर्न द रूल्स वेरी नाइसली इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अगर आपने रूल्स अच्छी तरीके से सीख लिया तो एग्जाम्पल्स जो है या एक्सरसाइजेज जो है बहुत ईजी हो जाता है आप सबके लिए, ठीक है। तो पहला रूल क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल? द फर्स्ट रूल इन इनडायरेक्ट स्पीच, सेड इज चेंज्ड इनटू, अब सेड को आपको बदलना है किसमें? सेड इज चेंज्ड इनटू, नाउ इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आपको सेंटेंस देख के चेंज करना है, ठीक है। ऑर्डर्ड में चेंज होगा, इट विल चेंज इनटू ऑर्डर्ड, इट विल चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, सेड विल चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, सेड कैन चेंज इनटू एडवाइज्ड, it can change into warned, it can change into forbade. Forbade also means not allowing somebody to do something, ठीक है। it can change into prohibited, as I already told you, it can change into proposed, or it can change into begged off, ठीक है। और and I will explain you all the uses of all these words, कहाँ ये सारे words यूज होंगे, हम लोग इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी इन डिटेल द यूजेस ऑफ ऑल दिस वर्ड्स,
ठीक है. नाउ योर फर्स्ट ड्यूटी इज द मोमेंट यू गेट अ सेंटेंस यू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, वेदर द सेंटेंस शोज ऑर्डर, वेदर द सेंटेंस शोज रिक्वेस्ट, whether the sentence shows advised, etc., etc. Okay. Then number 2, remove commas and inverted commas. तो हम लोगों ने assertive sentence and interrogative sentences also we saw this thing that we have to remove commas and inverted commas, and here in imperative sentences we will have to use the conjunction to. तो comma और inverted commas remove करके हमें conjunction to जो है वो use करना है. We have to use conjunction to. ठीक है. And you can write down the rules. Okay, you can pause the video and write down the rules so that when we do the examples, the rules will be in front of you. Then, not much rules, only 4 rules. Number 3, as usual, pronouns will change. I'll just change the color. Pronouns will change, tenses will change, past tense में चला जाएगा वो, ठीक है. Certain words will change today into that day, and you find these in page number 320 and 321. Certain words के examples. So pronouns, tenses and certain words are changed, right? And finally, which is the most important, one of the most important rule is imperative form is changed into assertive form. ठीक है. तो आप imperative sentence also ends with a full stop, assertive sentence also ends with a full stop, but you need to do certain changes so that from imperative form you change it into assertive form. आपको convert करना है, imperative form को आपको assertive form में convert करना है, ठीक है. तो यू नीड टू कन्वर्ट इंपरेटिव फॉर्म इनटू असर्टिव फॉर्म. बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. 4 रूल्स है सिर्फ, ओनली 4 रूल्स. तो यू कैन राइट डाउन द रूल्स. नाउ वी शैल सॉल्व एग्जाम्पल्स. हम लोग सारे वर्ड से जो है एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे अभी, ठीक है. बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा. द वीडियो विल नॉट बी टू लॉन्ग. सो पे योर फुलेस्ट अटेंशन. एग्जाम इज़ वेरी नियर, सो पे योर फुलेस्ट अटेंशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. तो हम लोग एग्जाम्पल्स पे वर्कआउट करेंगे अभी. लेट अस वर्कआउट ऑन some examples. तो पहले हम लोग ऑर्डर से देखते हैं. The master said to his servant, go and bring my umbrella. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फुल स्टॉप. तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग. वी आर सॉल्विंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट वी आर डूइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एंड आफ्टर आई फिनिश एक्सप्लेनिंग यू ऑल दी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टिल ऑप्टेटिव, फिर हम लोग जो है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करेंगे, ठीक है. तो हम लोग पहले एग्जाम्पल का सोल्यूशन देख लेते हैं. तो द मास्टर said will change into now here comes the thing that I told you. अब यहाँ पे वो चीज़ आ गई. You have to identify the sentence. Let me just go a little back. Now you have to identify whether it is ordered or requested or advised or warned or forbid or prohibited or proposed or begged of. आपको अब ये सेंटेंस पढ़ के आइडेंटिफाई करना है. Now which area will you identify? कौन से एरिया देख के आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे? जस्ट चेक दिस एरिया. ये इस एरिया को देख के आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज ऑब्वियसली एन ऑर्डर. द मास्टर इज टेलिंग हिज सर्वेंट गो एंड ब्रिंग माई अम्ब्रेला. सो इट इज़ एन ऑर्डर. सो सेट की जगह आप क्या लगाएंगे? पास्ट टेंस चला आएगा. यू विल हैव टू यूज पास्ट टेंस. सो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट. यहाँ पे टू वर्ड जो है वो फिर से डिलीट हो रहा है, ओके. फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा डिलीट करके आप क्या लगाएंगे? कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज विल बी रिमूव्ड एंड यू हैव टू यूज कंजंक्शन टू. लगा दीजिए टू. सो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू. बाकी जैसा है वैसा लिख लीजिए. नो नीड टू चेंज. गो एंड ब्रिंग. नाउ माई यहाँ पे कौन? हु स्पीच इज दिस? ये कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग द लाइन्स? द मास्टर इज स्पीकिंग द लाइन्स. So my refers to the master. It is his umbrella, no? So go and bring his umbrella. Okay, it is quite easy to understand, right? Let me drink little water. Okay, my okay, I am having a sore throat actually. Okay, anyways, so the master ordered his servant to go and bring his umbrella. बहुत easy to understand है. अब यहाँ पे you
must have noticed that I did not change the word go into went. ये तो go है, ये तो this is a verb. Now it should have been changed into went. Go went, went is past tense. But why didn't I change go into went? Because we are using the infinitive to. हम लोग यहाँ पे to यूज कर रहे हैं, to infinitive हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो जब हम लोग, just remember when we use the word to, after to the verb that you have that remains in present tense only. टू के बाद जो वर्ब आपको दिखेगा वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, उसे आप चेंज मत कीजिए. टू प्लस वर्ब विल बी इन द प्रेजेंट फॉर्म, नॉट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म. तो वर्ब जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा टू के बाद. इसको आप पास्ट टेंस में करेंगे गलत हो जाएगा. टू वेंट एंड ब्रिंग इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ठीक है, टू के बाद जो वर्ब आएगा यू कीप इट इन प्रेजेंट टेंस ओनली. तो इट इज़ वेरी, दिस इम्परेटिव सेंटेंस इज इन दिस वे, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. How it is easy to understand? Because after to you need not change the verb. जो जैसा है वैसा लगा दीजिए. Only pronoun you need to change. ठीक है? And here ordered ed. Here the tense has changed. Understood? So with ordered you have understood. Now we have requested. Sentence number 2. Tom said to his friend, please don't walk so fast. Full stop, inverted commas closed. Now this is also very easy to understand because you already have the word please here. So obviously said will change into, I'll just show you the list once again. Said will change into requested, because आप याद रखिए please, the word please and kindly, if you find in the sentence you have to use requested. अगर please और kindly word आपको दिखा आप requested लिखेंगे. ठीक है, बहुत easy to understand है. Okay. So let us solve this exercise. So Tom said के जगह आप क्या लगाएंगे? Requested. To will be cancelled. Requested his friend. Comma inverted commas will be removed. Conjunction to लगा दीजिए यहाँ पे. तो Tom requested his friend to. अब because you have used the word requested here, so this word please will be deleted. यहाँ पे अगर काइंडली भी रहा उसे आप डिलीट कर दीजिए. इफ़ यू फाइंड द वर्ड काइंडली ऑल्सो डिलीट द वर्ड काइंडली, बिकॉज काइंडली एंड प्लीज ऑलरेडी मीन्स रिक्वेस्टेड. तो यू हैव ऑलरेडी यूज द वर्ड रिक्वेस्टेड हियर, सो नो नीड टू पुट द वर्ड प्लीज अगेन. ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आता है. यहाँ पे डोंट है. अब हम लोगों ने देखा, अब हम लोगों ने क्या देखा, मैंने आपको समझा था कि टू लगाइए, राइट. मैंने भी यहाँ पे टू लगाया, बट ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज द वर्ड डोंट इज देयर. वेयर एवर यू फाइंड द वर्ड, जहाँ पे भी आपको डोंट वर्ड दिखे, वेर एवर एंड वेन एवर यू फाइंड द वर्ड डोंट, यूज नॉट टू. आप नॉट टू लगाइए. याद रखिए, जहाँ जहाँ आपको डोंट दिखे, से वी डोंट हैव द वर्ड डोंट हियर, यहाँ पे डोंट वर्ड नहीं है, दैट इज वाई वी हैव यूज टू, बट हियर वी हैव द वर्ड डोंट. तो जहाँ जहाँ आपको डोंट वर्ड दिखे वहाँ आप नॉट टू लगाएंगे. यू यूज द वर्ड नॉट टू. तो यहाँ पे हम एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं. मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि डोंट है यहाँ पे हम लोग, प्लीज तो डिलीट हो चुका है, वी विल यूज नॉट टू. वॉक सो फास्ट. खत्म हो गया. बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ना. डोंट आपको जहाँ जहाँ दिखेगा आप वहाँ पे नॉट टू लगा दीजिए. नॉट टू वॉक सो फास्ट. ठीक है. And if the word don't is not there, then just write to. ठीक है ना. Okay, then let us learn some more examples. अब हम लोग कौन से वर्ड से एग्जाम्पल लर्न करेंगे? हम लोग अब एडवाइज्ड से लर्न करेंगे एग्जाम्पल्स. नंबर 3, the teacher said to the
students don't waste your time in idle gossip. टीचर स्टूडेंट्स को ये कह रहा है, टीचर इज टेलिंग द स्टूडेंट्स, प्लूरल, ओके, टीचर इज टेलिंग द स्टूडेंट्स दैट डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। इसका मतलब आलसी बन के, आइडल बन के जो है गप्पे शप्पे मत मारा करो, यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, राइट। टीचर का मीनिंग यही है। तो टीचर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स। सो हाउ डू वी राइट? द टीचर advised, the to will be deleted, the students, यहाँ पे don't है तो आप कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? will you use to or not to? so we have don't, so we will use not to. waste, अभी your refers to who? if it is the teacher's speech, ये अगर टीचर कह रहा है, if the teacher is speaking the lines, then your cannot refer to the teacher, your is referring to the students, and students we know plural, there is s here, so your will become their, their, plural, their time in idle gossip, full stop। है ना, बहुत easy to understand है, it is not difficult to understand if you pay fullest attention, your fullest attention to the video, it will not be difficult to understand at all, it is as simple and as easy as that, ठीक है। और एग्जाम से पहले आप यही से रिवीजन दे के जा सकते, यू कैन जस्ट रिवाइज फ्रॉम माई वीडियो एंड गो एंड राइट एग्जाम्स, आपको बहुत हेल्प होगा। फिर हम लोग नंबर 4 पे आते हैं। अब नंबर 4 कौन सा है? चलिए मैं रैंडमली देता हूँ, आप गेस कीजिए, मैं नहीं बताऊँगा आपको, जस्ट गेस कीजिए आप। The girl said to me, don't touch my bag, मेरा बैग मत पकड़ो। अब ये क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, लेट मी शो यू द लिस्ट अगेन। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्न, फॉरबिड। तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज हम लोगों ने कर लिया। अब वी हैव वार्नड, वी हैव फॉरबिड, वी हैव प्रोहिबिटेड, प्रपोज्ड, बैक्ड ऑफ। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगेन। दिस गर्ल इज वार्निंग मी डोंट टच माई बैग और एल्स यू विल सफ़र और एल्स आई विल बीट यू। ओके, गर्ल पावर, women power. The girl, we will use warned in place of said. फिर यहाँ पे me, the girl warned me, comma, inverted commas removed. We have don't. So for don't we use a conjunction not to touch my bag. यहाँ पे किसका बैग? The girl is telling me don't touch my bag. So this is the speech of the girl. So the bag belongs to the girl. So my refers to the girl only. So instead of my, we will use her. Not to touch her bag. See, you have to use pronouns according to the listener and according to the speaker. तो आप ध्यान से देखिए, we have speaker here, we have listener here. Speaker is the girl, listener is me. And the pronoun that you get in the speech area, इस speech area में जो pronoun आपको दिखता है, okay, आप वहाँ पे जो pronoun आपको दिखता है, you change the pronoun according to the speaker and the listener into the third form. आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करना होगा। मैंने आपको पिछले जो है 3 वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन असर्टिव सेंटेंसेस, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट? सो देयर यू वॉच दोज वीडियोज। से इफ़ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पहले असर्टिव सेंटेंस देखिए। फर्स्ट यू वॉच द वीडियो ऑन असर्टिव सेंटेंसेस, देन you watch the video on interrogative sentences, and then you come here. You will not directly understand. आप directly जो है अंडरस्टैंडिंग करने में आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है? एनीवेज, सो नॉट टू टच हर बैग, ठीक है, राइट? ओके, सो यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल्स. I'll just pause the video for 2-3 seconds. You can also pause. Okay, let me
clear the screen. I hope all of you have written this thing. Okay, let me clear the screen then. अब हम लोगों ने कौन सा नंबर किया? We have done number 4, so let us do number 5. अब थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग. अब मैं आपको फॉरबेट से दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल. फॉरबेट में थोड़ा सा चेंज आएगा. देयर विल बी लिटिल चेंज इन द विद द वर्ड फॉरबेट. कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ. हाउ द चेंज ऑकर्स एक्चुअली. सारे रूल्स जो है सारे सेंटेंसेस में एप्लीकेबल नहीं होते. ऑल द रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस. अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस रूल्स कीप चेंजिंग. रूल्स चेंज होता रहता है. अगर आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, इफ़ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर very nicely, you will be able to solve any exercises that you get. Number 5. Tony said to Mohan, don't pluck flowers from my garden. मेरे गार्डन से, मेरे बगीचे से फ्लावर्स प्लक मत करो. सो ही इज़ फॉरबिडिंग. वो फॉरबेट कर रहा है. ठीक है, ही इज़ फॉरबिडिंग. सो टोनी फॉरबेड. अब फॉरबेड इज इन पास्ट टेंस. व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ फॉरबिड? फॉरबेड. द प्रेजेंट टेंस ऑफ फॉरबिड इज फॉरबिड. BID. ये प्रेजेंट टेंस में है. दिस इज इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये प्रेजेंट फॉर्म में है. इसका पास्ट फॉर्म है फॉरबीड. ओके, तो टॉम फॉरबीड मोहन. नाउ हियर अ चेंज विल कम. मैंने आपको क्या बताया? व्हाट डिड आई टेल यू? डोंट चेंजेस इनटू नॉट टू. ये comma, inverted comma, you are removing and you are putting not to if there is the word don't. But when you use the word forbade is itself a negative word. Forbade is itself a negative word, and you cannot use double negative. Not is also a negative word. Not is also a negative word. And in a sentence you cannot use double negative. Okay, so you cannot use double negative. तो यहाँ आपको क्या करना होगा? If you see the word forbade, then don't write not. आप not मत लिखिए, सिर्फ to लिख दीजिए. This is an exception to the rule. Okay, forbade word is itself negative. Not is another negative. So negative cancelled. ठीक है. So forbade अगर आपको दिखा, if you see the word forbade, write only to, even if there is the word don't here. ठीक है. तो Tony forbade Mohan to pluck flowers from माई गार्डन. किसका गार्डन? हुज गार्डन? टोनीज गार्डन. फ्रॉम माई गार्डन. टोनी ये बोल रहा है. दिस स्पीच इज बाय टोनी एंड टोनी इज टेलिंग मोहन. सो टोनी टेल्स मोहन दैट डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन. सो दिस माई इज हु? दिस माई इज टोनी. तो यहाँ पे माई विल चेंज इन टू हिज बिकॉज टोनी इज अ बॉय. ओके, सो फ्रॉम हिज गार्डन. टोनी फॉरबेड मोहन टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम हिज गार्डन. ठीक है, तो फॉरबेड वर्ड आपको दिखेगा तो आप नॉट मत लगाइए. नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड. सो ओनली टू कैन बी यूज्ड हियर. ठीक है, यू विल रिमेंबर दिस, राइट? एंड यू कैन राइट. सी, ये छोटे छोटे रूल. जैसे आप मैथ्स में रफ वर्क करते हैं ना, यू डू रफ वर्क इन मैथ्स. सो यू कैन जस्ट ड्रॉ अ लाइन इन द राइट साइड ऑफ योर कॉपी एंड यू कैन राइट द rules here, extra rules here, that don't changes into not to, but if there is forbade then we will have to use only to. ऐसे ऐसे करके आप रफ वर्क टाइप के आप साइड में लिखिए. देन बिफोर एग्जाम्स व्हेन यू डू रिविजन्स, नो, यू कैन जस्ट लुक एट योर रफ वर्क ऑल्सो. ये जो साइड में जो रूल्स आप लिखेंगे, एक्स्ट्रा रूल्स, विद दोज ओनली यू कैन सॉल्व एनी एक्सरसाइजेस. ठीक है, लेट मी रब दिस थिंग देन. Number 6. I hope you're understanding. Okay, and if you have any problem in understanding, please feel free to ask me in the comment box. तो हम लोग देखेंगे नंबर 6. नंबर 6 जो है कौन से वर्ड से? प्रोहिबिटेड. नाउ यू सी, विथ प्रोहिबिटेड सेंटेंसेस डू नॉट कम.
क्योंकि प्रोहिबिटेड, फॉरबेड, वार्नड मतलब तीनों एक ही तरीके का है, ठीक है। स्पेशली फॉरबेड एंड प्रोहिबिटेड आर ऑलमोस्ट सेम, सो लेट मी नॉट शो यू एनी एग्जाम्पल विथ प्रोहिबिटेड, ठीक है। लेट मी नॉट शो यू एनीथिंग विथ द वर्ड प्रोहिबिटेड। लेट मी गो टू प्रोपोज्ड, ठीक है। लेट मी गो टू प्रोपोज्ड। अब प्रोपोज्ड में जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़े से अलग किस्म के हैं, दीज आर लिटिल डिफरेंट प्रोपोज्ड। जैसे कि द बॉय सेड टू द टीचर, द बॉय सेड टू द टीचर, let us go for a picnic, comma sir, full stop, inverted commas closed, ठीक है। तो you can note down one thing, the word let, ठीक है। You can note down one thing, the word let. Now every sentence that begins with let, it doesn't mean that that sentence will be proposed only. हर वो सेंटेंस जो let से शुरू होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो proposed ही होगा। आप सेंटेंस को पहले देखिए, look at the speech, look at the speech, आप पहले स्पीच एरिया को देखिए। लेट अस गो फॉर अ पिकनिक सर, दिस इज एन इन्विटेशन कि चलिए ना सर हम लोग पिकनिक चलते हैं, चलिए ना सर हम लोग मूवी चलते हैं, चलिए ना सर हम लोग ये करते हैं, ओके। तो यू सी कि यहाँ पे एक्सप्रेशन, वेदर द एक्सप्रेशन मीन्स इन्विटेशन और नॉट, अ काइंड ऑफ एन इन्विटेशन कि चलिए ना सर प्लीज चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर, ठीक है ना। हम लोग लविंगली बोलते हैं ना, सो इट जस्ट सी इफ इट इज अ काइंड ऑफ एन इन्विटेशन। तो अगर आपने देखा कि इफ यू सी दैट द एक्सप्रेशन इज ऑफ अ काइंड ऑफ एन इन्विटेशन, देन ओनली इट विल बी प्रोपोज्ड, तभी वो प्रोपोज्ड होगा। क्योंकि मैं आपको दूसरे सेंटेंसेस दिखाऊंगा वेयर वी विल बिगिन विथ लेट बट इट विल नॉट बी प्रोपोज्ड, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे, विल सी इन द नेक्स्ट सेंटेंस, बट हियर लेट अस जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। सो दिस इज a kind of an invitation. So जब भी आपको invitation kind of दिखे तो then what you can do is that said will change into proposed. So the boy, मैं यहाँ पे boys लगा देता हूँ, ठीक है। The boys proposed. अब proposed जब आएगा तब आप to लगा सकते हैं, you can use the word to here. क्यों to लगाएंगे उसका एक मैं कारण आपको बताता हूँ, I'll tell you one reason. अब प्रपोज जहाँ पे दिखे आप वहाँ पे टू लगा सकते हैं, यू कैन यूज द वर्ड टू। प्लीज रिमेंबर द स्ट्रक्चर, ओके, यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर। आप फिर से इस एरिया में आप लिख लीजिए, प्रोपोज्ड आएगा तो आप टू लगा सकते हैं, प्रपोज के बाद प्रपोज प्लस टू यू कैन यूज। क्यू यूज कर सकते हैं आप, उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, आई टेल यू द रीजन ऑल्सो, बिकॉज विदाउट रीजन ग्रामर कैन नॉट वर्क, है ना। अगर कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो उसके लिए एक रीजन तो होगा कि ऐसा क्यों हुआ। द बॉयज प्रपोज टू द टीचर। नाउ नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक, फ्रॉम नंबर 1 टिल नंबर 5 वी सॉ दैट वी हैव यूज्ड ओनली 2 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। हम लोगों ने सिर्फ 2 तरीके का कंजंक्शन यूज किया, एक है टू और दूसरा है नॉट टू, राइट और रॉन्ग, वी हैव यूज्ड ओनली टू एंड नॉट टू। बट वेन एवर द वर्ड प्रोपोज विल बी यूज्ड, जब आप प्रोपोज वर्ड यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रोपोज्ड के साथ आप जो कंजंक्शन लगाएंगे वो है दैट, दे, शुड। सब मिलके जा रहे हैं ना, दैट इज वाई दे, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टुगेदर, आई मीन देयर द बॉयज एंड द टीचर, द बॉयज आर टेलिंग टू द टीचर दैट लेट अस को, तो यहाँ पे अस है, अस इज प्लूरल, तो इसीलिए अस के जगह हम लोग दे लगा रहे हैं, वी यूज दे इन प्लेस ऑफ अस, because us is personal pronoun, first person pronoun, first person plural, and they is third person plural. तो everywhere you have to use third person only, आपको third person ही यूज करना है हर जगह, तो us का जो third person है वो है they। तो proposed word जब आपको दिखे तो आप क्या लगाएंगे, कौन सा कंजंक्शन, रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज द कंजंक्शन दैट, दे, शुड, ये तीनों आप एक साथ लगाएंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए साइड में कहीं पे, यू राइट डाउन somewhere in the corner as I told you। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब रब करने के बाद हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं। द बॉयज प्रपोज टू द टीचर, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास रिमूव्ड, कंजंक्शन दैट, दे, शुड,
लेट अस को आपने डिलीट कर दिया है, लेट अस की जगह आपने लगाया है दैट दे शुड, इन प्लेस ऑफ लेट अस यू हैव यूज्ड दैट दे शुड, सो लेट अस विल बी डिलीटेड। आपने लेट अस की जगह ही ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है, तो लेट अस को डिलीट कर दीजिए। तो बाकी बचा क्या, व्हाट इज रिमेनिंग, गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर अ पिकनिक। अब सर वर्ड का आप क्या करेंगे, सर इज ऑलरेडी टीचर, आपने ऑलरेडी यहाँ पे टीचर वर्ड यूज़ कर दिया है, यहाँ पे सर वर्ड आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट यूज द वर्ड सर एनीवेयर बिकॉज सर मीन्स टीचर ओनली, सो नो नीड टू रिपीट दिस सर हियर। अगर ये कोई नाम होता देन यू कैड हैव यूज्ड एनी प्रोनाउन, है ना, बट यहाँ पे स्पीकर भी है, लिसनर भी यहाँ है, स्पीकर इज ऑल्सो हियर, लिसनर इज ऑल्सो हियर, ठीक है। तो वेन स्पीकर एंड लिसनर बोथ आर हियर देन दिस वर्ड सर डज नॉट कैरी एनी वैल्यू, आई मीन द वर्ड सर कैरीज अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑब्वियसली, तो टीचर तो है बहुत वैल्यू रखता है बिकॉज अ टीचर इज़ अ नेशन बिल्डर, राइट। बट यहाँ पे मैं अगर वर्ड कहूँ, दिस वर्ड सर हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल does not carry any importance, so you delete the word sir because you have already used the word teacher here, full stop लगा दीजिए यहाँ पे, go for a picnic, ठीक है। you have to find out, you see boy speaker teacher listener, boy speaker teacher listener, तो ये सर का यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं, नो यूज ऑफ दिस वर्ड सर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जस्ट रिमूव इट, आप रिमूव कर दीजिए इस वर्ड को। तो द बॉयज प्रपोज टू द टीचर दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है, आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब लास्ट सेंटेंस हम करते हैं वो है बेग्ड ऑफ से। अब देखिए बेग्ड ऑफ में भी मैं लेट लगाऊंगा, आई विल यूज द वर्ड लेट इन बेग्ड ऑफ ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं कि हर बेग्ड ऑफ में लेट ही लगेगा, नॉट लाइक दैट इन एवरी बेग्ड ऑफ इट विल बी लेट ओनली। मैं बेग्ड ऑफ में देखिए मैं लेट लगाऊंगा, और कैसे लगेगा लेट, नंबर 7, द अक्यूज्ड said to the judge, let me see my children before I die, full stop, inverted commas closed। अब देखिए ये जो अक्यूज्ड है, जो दोषी है, दिस अक्यूज्ड काइंड ऑफ अ क्रिमिनल हु हैज बीन टेकन टू द, हु हैज डन सम क्राइम एंड ही हैज बीन टेकन टू द जेल, फ्रॉम द जेल ही हैज बीन सेंट टू द कोर्ट एंड द जज हैज गिवन हिम डेथ पनिशमेंट, जज ने उसको डेथ पनिशमेंट सुनाया, फांसी का सजा सुना दिया। तो अक्यूज जो है वो जज से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मेरे बच्चों को देखने दीजिए मेरे मरने से पहले, बिफोर आई डाई लेट मी सी माई चिल्ड्रन। तो ये तो गिरगिराना हुआ ना, लाइक यू आर, this accused is crying and like it's a kind of a begging to the judge कि please judge let me see my children before I die, folding hands and telling the judge, हाथ जोड़ के जो वो जज से कह रहा है। तो it is like a kind of request, बट ये रिक्वेस्ट जो बहुत इंटेंस है, द रिक्वेस्ट इज़ वेरी इंटेंस, नॉट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट कि कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, ये तो बहुत फॉर्मल तरीके का रिक्वेस्ट हुआ। तो फॉर दोज फॉर्मल काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट बहुत हल्का है, वेरी लाइट काइंड ऑफ, हल्का फॉर्मल काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, उसमें आप जो है रिक्वेस्टेड वर्ड लगा सकते हैं, you can use the word requested, very formal kind of this thing, but here this particular request is very intense, बहुत deep, बहुत intense, बहुत extreme है। यहाँ पे आप जब कोई request, whenever any request becomes an intense kind of a thing, you are folding your hands and like asking somebody, please let me see my children before I die, here you have to use begged off only, यहाँ पे आप begged off ही लगाएंगे। तो आप difference जान लीजिए, please look at the sentence and identify the difference। ऑलराइट, हियर योर इंटेलेक्चुअलिटी विल वर्क, यहाँ पे आपका आइडेंटिफाइंग पावर जो है वो काम करेगा, राइट, ओके। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इफ़ यू विश यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, पॉजिंग द वीडियो, लेट मी रब दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस, अब देखिए मैं जल्दी जल्दी इसको जो है ख़त्म कर लूँ। द अक्यूज्ड, सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़, लुक एट द सेंटेंसेस वेरी नाइसली। द अक्यूज्ड begged off together, begged off, you have used off, here two will be deleted, begged off the judge। अब यहाँ पे that
हम लोगों ने क्या देखा, लेट जहाँ जहाँ आएगा, आई टोल्ड यू दैट इन प्रोपोज्ड वेन एवर यू फाइंड लेट us, it will be, the conjunction will be that they should. But here the case is not proposed. Is this proposed? No, this is begging of, extreme request. तो the accused begged of the judge. यहाँ पे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठा के आप यहाँ पे टू ही लगाइए, यूज ओनली टू हियर आफ्टर रिमूविंग कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज, बिकॉज दिस इज नॉट अ proposed वाला सेंटेंस. It is not a, the accused is not proposing to the judge, right? It's not a kind of an invitation to the judge. Hey judge, let me meet my children before I die. No, this emotion is very intense. तो यहाँ पे आप टू ही लगाएंगे, you will use only two. फिर आप let word को लगाएंगे यहाँ पे, to let. accused यहाँ पे लड़का है, me means the accused, तो let him. see, my यहाँ पे कौन, मैंने कहा जहाँ जहाँ my आएगा वहाँ आपको his लगाना है, तो let him see his children before. I कौन यहाँ पे, I again it is the accused only, before he, I will become he before he. Then die, इसको आप past form में ले लीजिए, before he died. The accused begged of the judge to let him see his children before he died. Die will become will change into the past form, before he died. तो आपने डिफरेंस नोट किया, डिड यू नोट द डिफरेंस? प्रोपोज्ड में आप क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट दे शुड, एंड यू विल रिमूव लेट अस. यहाँ पे लेट से शुरू आए, बट दिस इज बेग्ड ऑफ. तो जब बेग्ड ऑफ आएगा तब कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास यू विल रिमूव, यू विल यूज द कंजंक्शन टू. देन यू कैन यूज द वर्ड लेट, आप लेट वर्ड लगा सकते हैं, एंड देन यू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली. प्रोनाउंस विल चेंज. देन हियर ऑल्सो प्रोनाउन हैज चेंज, हियर you have changed I into he, and then die को आप जो है इसको past tense में कर दीजिए. ठीक है, तो I told you that you cannot change the verb after to, but die, the word die is not anywhere near to. इस to के पास तो ये die word तो है नहीं, this die is a verb, तो to के पास तो die verb है नहीं. It is the word die is not near to, it is quite far from to. अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊँ, if I explain you in this way, very simple way. हम लोग ज़्यादा ग्रामेटिकल जो है हाई फाई वर्ड्स यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं. इट्स नो यूज, यू नो, यूजिंग हाई फाई वर्ड्स एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. आप, मैं ज़्यादा बॉम्बस्टिंग वर्ड्स यूज़ करूँगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो माई ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी फुलफिल. मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ दैट माई स्टूडेंट्स, ऑल माई स्टूडेंट्स फ्रॉम माई चैनल ओमनी ज्ञान डू अ वेरी गुड रिजल्ट इन देयर एग्ज़ाम्स. और सब जो है आपके सिलेक्शन टेस्ट के सारे जो है रिजल्ट्स आप लोग मुझे बताएंगे. मैं एक वीडियो उसके ऊपर जब बनाऊंगा, आप उसके नीचे मुझे कमेंट करेंगे आपको कितने कितने मार्क्स आए, और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे. इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड. एक्चुअली नॉट ओनली हैप्पी, आई विल बी वेरी ब्लेस्ड. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आई विल बी, एंड यू सी, आई कंटिन्यूसली प्रे फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, नॉट ओनली ओमनी ज्ञान चैनल, बट द प्लेस where I work also. I pray for all my students that all of you become successful in your life, in your career ahead. आप अपने करियर, आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े और बहुत बड़ा बने. ओके, यू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई प्रे, एंड आई ऑलवेज प्रे. ठीक है, मैं सोने से पहले जब प्रे करता हूँ तो मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रे करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर. तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा बॉम्बस्टिंग वर्ड्स यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं. इट इज़ नो यूज़ यूजिंग बॉम्बस्टिंग बिग बिग वर्ड्स. सिंपल भाषा में समझाओ तो डाई वर्ड डज नॉट कम एनीवेयर नियर द वर्ड टू. टू के पास डाई वर्ड आता नहीं है, इसका डिस्टेंस बहुत दूर है. इट इज़ फार अवे फ्रॉम द वर्ड टू, सो यू कैन चेंज इट. अगर आमने सामने होता तब आप चेंज नहीं कर सकते थे. सी, द वर्ड सी, सी कैन बिकम सॉ ऑल्सो. नो, सी को आप सॉ कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि एकदम लेट के सामने आ रही है, एंड टू के भी सामने आ रहा है. देखिए, टू के बिल्कुल सामने है, जस्ट टू वर्ड्स डिस्टेंस में ये वर्ड सी है, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे. बट डाई वर्ड बहुत दूर है, तो उसको आप चेंज कर दीजिए आराम से. नाउ यू टेल मी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू all the words and in detail, and now I will be giving you homework also. You can do the homeworks, and yes, remember I had given you homework from my last video. The solution, the answers you will find in the description box. जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, those
the solutions, the answers for those exercises you'll find in the description box. तो आप description box में जाके वो पिछला वाला आंसर्स आप देख लीजिए एंड चेक द आई बटन ऑल्सो. यहाँ पे एक आई बटन होता है ना छोटा सा ऊपर, इसको आप चेक कर लीजिए. इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द एंटायर ग्रामर प्ले लिस्ट. पूरे चैनल का प्ले लिस्ट में डाल दूंगा. यू क्लिक ऑन द प्ले लिस्ट एंड यू विल गेट ऑल द इंग्लिश ग्रामर वीडियोज़ विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लासेस 9 एंड 10. तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए और मेरा पिछला वीडियो चेक कर लीजिए. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मैं दे दूंगा. Okay, so I hope all of you have understood, all of you have written down the rules, all of you have written down the examples, whichever examples I have given. ठीक है, तो आप इस वीडियो को जो है एक दो बार twice, 3 times, not once but twice, 3 times you can watch the video, and then if you have any doubt you can comment me in the comment section. Okay, and today is Saturday, and as I told you that Saturday Sundays I prepare videos, I make videos on only English 2, I explain you only English 2. Okay, so that is all from me for today. Okay, so all of you do the I'll give you the homeworks here. Just write down the homeworks and we'll meet in the next class again on Sunday. I'll come up with some new video. I'll explain you exclamatory sentences. Okay, so this is your homework. You can take down the homework, and in the next video I'll provide you the solutions also. So that's all from me for today. Thank you so much for watching the video. Subscribe, like and share my videos. With love from Omni Gyan, and all the best to all of you.